Okay. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, class. Okay. Good morning, sir. Uh, okay. Hopefully, you are revised the last topics. In last lecture we discussed the how the combinational circuits are work, how it what are the main components of combinational circuit. In the combinational circuit, we explained that the it is a combination of a certain logics, certain logic gates, and these logic gates are implemented in an organized way. The input the output is totally dependent on the input. कॉम्बिनेशन सर्किट में जब हम लोगों ने देखा था कल, तो उसमें ये देखा कि ये सर्किट जो होते हैं, ऐसे सर्किट होते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि करंट इनपुट पे डिपेंडेंट होते हैं. जो इनपुट आप सेंड करते हैं उस पर वो डिपेंडेंट रहते हैं. और जो इसमें किसी भी तरीके का प्रीवियस स्टेट, इनपुट के प्रीवियस स्टेट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर रहती है. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में देखा हमने. और इससे पहले इसमें बेसिक ऑफ सर्किट्स क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं. तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट में एक जो हम लोगों ने लिमिटेशन देख रहे हैं कि इनपुट्स जो हैं वो करंट जो इनपुट दिया जा रहा है उसी पे आपका आउटपुट डिपेंडेंट कर रहा है. तो प्रीवियस इनपुट का क्या होगा. तो in today's lecture, in today's video lecture, we discuss the how this problem is removed from the combination circuit. Combination circuit includes the input signals, combination component, and the output thing. So this problem is solved in the sequential circuit. Combination circuit. और आज हम लोग देखते हैं कि sequential circuit कैसे वर्क करता है, क्या होता है इसके अंदर, और इसको कंपेयर करते हैं कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट को कि दोनों में डिफरेंस क्या है. और इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, मेन कैटेगरी सीक्वेंशियल सर्किट की क्या है. इन आगे के लेक्चरों में वी डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट. तो लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज द सीक्वेंशियल सर्किट. सीक्वेंशियल सर्किट I just saw this block diagram. This is explain the sequential circuit. Sequential circuit, as you know that a combination circuit includes only inputs and output. This part, only this part contains the combination circuit. Sequential circuit is a circuit which contains combination circuit with inclusion of memory element. Sequential circuit कुछ अलग नहीं है. Sequential circuit एक ऐसा combination circuit है जिसके अंदर memory element attach हो जाता है. Combination circuit में inputs दिए जाते थे और ये इनपुट टोटली आउटपुट को जनरेट करते थे, और आउटपुट जो है करंट इनपुट पे रिप्रेजेंट करता था. लेकिन किसी भी तरीके का प्रीवियस इनपुट्स पे या आउटपुट पे कोई भी स्टोरेज नहीं, किसी भी तरह का स्टोरेज एलिमेंट नहीं है. इंफॉर्मेशन स्टोर करने का कोई प्रोसीजर नहीं था कॉम्बिनेशन सर्किट में. इसी को दूर करने के लिए कॉम्बिनेशन सर्किट में मेमोरी एलिमेंट को अटैच कर दिया गया. अब ये मेमोरी एलिमेंट एज ए बफर है, एज ए बफर स्टोरेज है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. तो if you define the sequential circuit, then the sequential circuit is a combination circuit with memory. As we know that the combination circuit does not
contain doesn't contain any memory, and they are only save the current information, current input. They dependent only current input, and due to the lack of information saving concept, we include the memory element in the combination circuit, and the new circuit is called sequential circuit. The previous state of input depends the output in the combination circuit. Only previous input, current input are dependent. In the sequential circuit, if as we include the memory, and this memory is capable to store the information of inputs, previous input, previous output, these any information. If you want to store that, then you use it memory element. These type of circuit which contain the combination circuit as well as memory element is called sequential circuit. ये ब्लॉक डायग्राम सीक्वेंशियल सर्किट का बना हुआ है कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट जिसमें कि मेमोरी एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है। और मेमोरी एलिमेंट देखिए यहाँ पे इनपुट है, आज दे रहा है, कॉम्बिनेशन सर्किट है ही है। अगेन कॉम्बिनेशन सर्किट जैसे लॉजिक गेट से मिलकर बना होता था और वेरियस डिजिटल कंपोनेंट होते थे, ठीक उसी तरह से इसके अंदर भी आपका ये सारी चीजें होंगी। आउटपुट है, और आउटपुट के लक्ष्मी मौर्य आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yes, sir. So what is previous input? Sorry, what is Previous input. previous input? Okay, okay. गुड। प्रीवियस इनपुट का मीनिंग ये है कि जैसे कि ये आपका इनपुट, सपोज करिए आपने वन पास किया, तो 1 और 0 क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पास किए जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जब पास किए जाते हैं तो इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म होकर आउटपुट को साथ आता आएगा। मान लिया एंड का प्रोसीजर हो रहा है, तो 1 इंटू 0 0 आएगा। अब ये जो आपका कॉम्बिनेशन आया हुआ है, इसको, इस आउटपुट को आप दोबारा से एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे सीक्वेंसर सर्किट में फीडबैक का प्रोसीजर होता है कि आउटपुट की वैल्यू को दोबारा से इनपुट में एज ए सिग्नल यूज किया जा सकता है। एक तरह से ये इंटरलिंक्ड है, देखिए जो जुड़ा हुआ है कि इंटरलिंक्ड है कि जो आपको आउटपुट होता है वो प्रीवियस में स्टोर हो जाता है। इसका छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, जब आप काउंटर सपोज करते हैं तो काउंटर में होता क्या है कि इनिशियल वैल्यू 0 होती है, उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ऐसा होता है। तो आप कर क्या रहे हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रीवियस वैल्यू पता होगी तभी तो उसमें आप ऐड कर पाएंगे। तो काउंटर एक सीक्वेंसर सर्किट का एग्जांपल है, तो वहां पे प्रीवियस वैल्यू आपने स्टोर कर रखी है, जैसे प्रीवियस वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट जो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 हो जाएगी, अगर 1 1 का एडिशन हो रहा है। अगर काउंटर आपका 3 3 इंक्रीमेंट कर रहा है तो प्रीवियस वैल्यू अगर 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू 4 हो जाएगी, उसके बाद आपकी 7 हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी। तो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करने का मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट आया हुआ है उसको हम लोग दोबारा एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं एज ए फीडबैक इंफॉर्मेशन। तो ये प्रीवियस इनपुट का मीनिंग है। क्लियर है? ये चीज मैंने काउंटर के एग्जांपल से आपको बताया कि कैसे काउंटर वर्क करता है। तो यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट है, और साथ में ये देखिए क्लॉक बना है। क्लॉक क्या होता है? क्लॉक एक प्रोसेसर के अकॉर्डिंग देता है, और एक तरह से ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। ये कंट्रोल करता है कि ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कितने टाइम तक होगा, कब तक इनपुट दिया जाए, कब आउटपुट जनरेट हो रहा है, इनपुट से आउटपुट आने में कितना समय लग रहा है या कितना टाइम अलॉट किया गया है। ये सारी चीजें अगर कोई इनपुट यहाँ रखा हुआ है तो कितनी देर तक वो आगे मतलब प्रोसीड करेगा, इसका वेटिंग टाइम कितना होगा। तो ये सारी चीजें, क्लॉक का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कितने समय में प्रॉपर आउटपुट दे पा रहा है, उसको क्लॉक बोलते हैं। टाइमिंग को मैनेज करने के लिए प्रोसेसर एक सर्टेन क्लॉक बनाता है, वो इंस्टेंस ऑफ टाइम इन विच द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ में मेमोरी एलिमेंट अटैच करके हम लोगों ने सीक्वेंसर सर्किट बना लिया है। और सीक्वेंसर सर्किट को अब अगर आप डिफाइन करेंगे, सीक्वेंसर सर्किट क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द previous in current input and previous input of the variable, current input or the previous input of the variable, या हम कह सकते हैं current input or the previous output of the sequence।
जैसे कि प्रीवियस इनपुट मैंने बोला था 0 1 है, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आई है वो वैल्यू दोबारा से यूज होगी, तो अगली बार जब आप नया वैल्यू लेंगे तो इस ये वैल्यू भी यूज हो जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू भी यूज हो जाएगी। तो आपकी वही बता रहा है कि सीक्वेंसर सर्किट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट बेस्ड ऑन करंट इनपुट एंड प्रीवियस इनपुट वेरिएबल्स या प्रीवियस आउटपुट वैल्यू, दोनों की वैल्यू पे ये डिपेंडेंट होता है। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो स्टोरेज है बाइनरी इंफॉर्मेशन का वो यहाँ पे हो सकता है। द सीक्वेंसर सर्किट इज कैपेबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी इंफॉर्मेशन जो भी होती हैं वो आपकी टाइम डिपेंडेंट होती हैं, जिसको क्लॉक से मैनेज किया जाता है, और उसमें नंबर ऑफ बिट्स जो होती हैं वो स्टोर की जाती हैं, जो कि फर्दर आगे यूज होती हैं। जो भी मेमोरी एलिमेंट बना होता है ये किससे मिलकर बना होता है? मेमोरी एलिमेंट जो एक डिजिटल कंपोनेंट होता है जिसको लैच बोलते हैं, लैच या रजिस्टर। तो लैच क्या होता है कि एक ऐसा डिजिटल कंपोनेंट है विच इज कैपेबल टू स्टोर द सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी सिंगल बिट को स्टोर करने में वो कैपेबल है। जैसे आपका 0 1 1 ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है, तो आपकी जो फर्स्ट 1 की वैल्यू है एक लैच में रहेगी, और जैसे 0 की रहेगी, ऐसे करके हर जो बाइनरी बिट होती है वो एक एक लैच में स्टोर रहती है। तो नंबर ऑफ रजिस्टर या नंबर ऑफ लैचेज जो होते हैं वो एज ए बफर की तरह यूज किए जाते हैं, मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज किए जाते हैं, और उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो मेमोरी एलिमेंट या बफर की तरह से लैचेज और रजिस्टर का यूज किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रीवियस इनपुट वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल इनपुट बनाया गया, कॉम्बिनेशन सर्किट लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल आउटपुट दे रहा है। साथ में क्या हुआ कि इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो नेक्स्ट स्टेट में एज ए इनपुट की तरह काम कर ले रहा है। तो ये मेमोरी एलिमेंट क्या है आपका? एज ए स्टोरेज एलिमेंट है। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ में, इसीलिए इसको सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। कि सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंडेंट रहता है। और कैसे इसको कैसे मैनेज किया जाता है? इसको आप एक मेमोरी एलिमेंट को अटैच करके कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ में यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं, एक्सटर्नल इनपुट विच नॉट कंट्रोल्ड बाय द सर्किट, जो एक्सटर्नल इनपुट होते हैं, ये जो आउटपुट इनपुट जा रहा है एक्सटर्नल, ये सर्किट नहीं की कंट्रोल करता है। इसको इसको जो प्रोसेसर होता है उसको अलग से कंट्रोल करना पड़ता है। इसी कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है। ये क्लॉक मैनेज करता है, वो ये टाइम इंटरवेंशन मैनेज करता है। क्लॉक इज द टाइम इंटरवेंशन गिवन बाय द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर वो टाइमिंग जो देती है कि इस पर्टिकुलर इनपुट को कैसे यूज किया जाए, तो इस चीज को मैनेज हमें एक्सटर्नली करना पड़ता है, ये इंटरनली सर्किट नहीं करता है। तो एक्सटर्नल इनपुट विच नॉट कंट्रोल्ड बाय द सर्किट, सर्किट इसको कंट्रोल नहीं करता है, इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ क्लॉक रिप्रेजेंटेशन बाय द प्रोसेसर। इंटरनल इनपुट विच आर ए फंक्शन ऑफ प्रीवियस आउटपुट स्टेट। अब जो इंटरनल इनपुट बनते हैं वो जो ये इनपुट टोटल बनेगा सीक्वेंशियल सर्किट के लिए, पहली बार तो वो सिंगल रहेगा। नेक्स्ट टाइम जो इनपुट आएगा तो ये करंट इनपुट तो है, ये साथ में प्रीवियस इनपुट जो यहाँ से आया हुआ है फीडबैक लिंक के अकॉर्डिंग वो भी यूज होता है। तो वहाँ पे इसको इसको भी यूज करते हैं। इसका यूज एक तरह से जैसे कि प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि मान लिया कि आप कैरी ओवर कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिट्स दोबारा से यूज हो जाती हैं। मतलब जहाँ पे भी प्रीवियस इनपुट को हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे आप इसका सीक्वेंशियल सर्किट का यूज करते हैं। जो अब ये सारी चीजें हुई, अब हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे क्वेश्चन जरूर आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। डायग्राम आपने देख लिया। कॉम्बिनेशन सर्किट में केवल इनपुट होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट होता है और आउटपुट होता है। सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट, कॉम्बिनेशन सर्किट एंड आउटपुट के साथ साथ एक फीडबैक लिंक के थ्रू मेमोरी एलिमेंट अटैच होता है। ये डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस कंपेयर कर रहे हैं कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के। डिफरेंस क्या है? पहले आप डिफाइन अगर करते हो तो डिफाइन अगर करेंगे तो कॉम्बिनेशन डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि कॉम्बिनेशन सर्किट इज द टाइप ऑफ सर्किट इन विच आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड ओनली रिलायज ऑन द इनपुट प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर स्टैंड। इसका मीनिंग यह है कि आपका जो कॉम्बिनेशन सर्किट है जो पहले हम लोगों ने देखा था वो टोटली करंट इनपुट पे डिपेंड करता है
और उसका उस इनपुट से आउटपुट आने के लिए जितना समय लगता है, ये जो टाइम है, ये इंटरनल सर्किट मैनेज करता है। इसको बाहर से हैंडल नहीं किया जा सकता है, प्रोसेसर इसको हैंडल नहीं कर सकता है। तो इनपुट का जो टाइम डिले है, द टाइम कन्वर्जन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द इंटरनल सर्किट एंड कैन नॉट बी मैनेज आउटसाइड। कॉम्बिनेशन सर्किट में इस तरह से होता है कि जो इनपुट होता है वो डायरेक्टली आउटपुट में कन्वर्ट होता है, करंट इनपुट पे डिपेंडेंट होता है आपका सर्किट, और जो इंटरनली इसको मैनेज किया जाता है उसका जो टाइम डिले है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है एक्सटर्नली। कंपेयर करते हैं सीक्वेंसर सर्किट इस चीज को। Sequencer circuit is the type of circuit where output not only relies on the current input but also dependent on the previous output. Sequencer circuit जो होता है, sequencer circuit जो है उसमें जो आउटपुट है आपका वो करंट इनपुट पे तो डिपेंडेंट होता ही होता है, इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस इनपुट्स होते हैं, पहले जो इनपुट स्टोर किए गए हैं मेमोरी एलिमेंट में, उन पे भी डिपेंडेंट रहता है। ये मेन डिफरेंस है। इट डिपेंड्स ऑन द करंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस इनपुट ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है यहाँ पे, ये हम लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा। अब देखते हैं कि फीडबैक मतलब कि रिवर्स, आउटपुट को रिवर्स इनपुट में यूज करना, आउटपुट को दोबारा से एज ए इनपुट यूज करना, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। तो फीडबैक प्रोसीजर किस में होता है? Combination circuit as a output does not depend on the time instant. No feedback is required for its next output generation. इसका मीनिंग है कि कॉम्बिनेशन सर्किट जो होते हैं वो करंट इनपुट पे ही डिपेंड रहते हैं और प्रीवियस इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी तरीके का फीडबैक प्रोसीजर कॉम्बिनेशन सर्किट में नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है। सीक्वेंसर सर्किट में, सीक्वेंसर सर्किट के अंदर सीक्वेंसर सर्किट आउटपुट रिलीज ऑन इट्स प्रीवियस फीडबैक, सो आउटपुट ऑफ प्रीवियस इनपुट इज बीइंग ट्रांसफर्ड एज अ फीडबैक यूज विद इन इनपुट फॉर अ नेक्स्ट आउटपुट जनरेशन। मीनिंग कि सीक्वेंसर सर्किट के अंदर जो आपका आउटपुट आएगा वो करंट इनपुट को पे डिपेंडेंट रहने के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे या प्रीवियस इनपुट की कंडीशन पे भी डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि ये इसके अंदर एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्रीवियस इनपुट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और साथ ही साथ एज ए लिंक के थ्रू, फीडबैक लिंक के थ्रू ये अटैच रहता है इनपुट के साथ में। तो फीडबैक लिंक का जो यूज है वो आपका सीक्वेंसर सर्किट करता है, जिससे कि करंट इंफॉर्मेशन और प्रीवियस इनपुट की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस पे आते हैं। परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस का मीनिंग है कि हाउ एफिशिएंटली वी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, कितनी फास्टली कितना एग्जीक्यूशन हम बेस्ट कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन की टाइम डिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर एज द इनपुट ऑफ द करंट इंस्टेंस इज ओनली रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट, it is a faster and better in performance as compared to the sequencer circuit. This becomes a positive point. Then combinator circuit depends on current input, so that it not required any further waiting for the other information, and the time for execution for any particular input is less than as compared to sequential circuit, because sequential circuit waits for the previous inputs as well as current input. Combination circuit is a faster and better in performance as compared to the sequential circuit. Reason is that the combination circuit depend on only current inputs. Sequential circuit performance as compared, sequential circuit are comparatively slower, as a low performance as compared to that combination circuit, slower है। इस रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट सीक्वेंसर सर्किट जो होता है वो करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस इनपुट का भी वेट करता है।
और जब प्रीवियस इनपुट का वेट करेगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे भी कुछ सर्च करने में टाइम लगेगा, और इसका जो सर्चिंग टाइम या फीडबैक से डेटा लेने का टाइम है वो भी ऐड हो जाएगा इनपुट के अंदर। तो यहाँ पे सीक्वेंसर सर्किट में क्या होता है कि कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करें कंप्रेसर सर्किट से, तो इट इज स्लोअर एंड लो परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन सर्किट, because it takes the inputs of previous value from the memory element. This incurred the extra time for execution. Next, complexity. Complexity signifies that the how the circuit is complex, how it is updatable, easy or not. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कितना उसमें कंपोनेंट का ट्रैफिक है, कितना उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, कि कैसे वो अपडेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग है कि नो ड्यू टू नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीडबैक मेक्स ए कॉम्बिनेशन सर्किट लेस कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू सीक्वेंसर सर्किट। नो एक्स्ट्रा सर्किटरी रिक्वायर्ड। कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर ओनली कॉम्बिनेशन सर्किट की इंफॉर्मेशन चाहिए, इनपुट चाहिए, आउटपुट निकलेगा। किसी भी तरह का प्रीवियस स्टोरेज नहीं है, मेमोरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल कंट्रोल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लॉक जनरेशन नहीं रिक्वायरमेंट है। तो जब आपको मेमोरी एलिमेंट की जरूरत नहीं है, क्लॉक पल्सेस की जरूरत नहीं है, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट नहीं की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये तीन चार टास्क नहीं करने हैं कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग जो आपके एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं, वो भी नहीं होते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर। तो ये सारे एलिमेंट ना होने की वजह से जो कॉम्बिनेशन सर्किट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, और वो इजी टू मैनेज, इजी टू अपडेट। रीजन मैं साथ में बताता चल रहा हूँ, ये इसमें आपका नहीं शो रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं होती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि फीडबैक का प्रोसीजर नहीं होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर, मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, और किसी भी तरह का टाइम कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं चाहिए होता है। सीक्वेंसर सर्किट के अंदर क्या है, सीक्वेंसर सर्किट के जनरली complex in nature. Why is the sequencer circuit complex in nature? The reason behind it, this is कि sequencer circuit are collection of combination circuit as well as it also contain the memory element and feedback links. It require clock pulses, external clock pulses, and also obviously the management of the timing and control unit. Due to these extra feature, sequencer circuit require more circuitry, more components as compared to combination circuit. Due to this reason, sequencer circuit are complex in nature and we cannot easily update this. So this is the, as you so that this is the negative point for this. Then next we have elementary blocks. Elementary building blocks for a combination circuit are logic gates. As we know that the combination circuits are made with the group of logic gates. Logic gate are the fundamental as a AND or not, XOR, NOR, NAND, NOR. So these gates are fundamental gates. And these gates, due to the combination of these fundamental gates, we make the combination circuit. So these are the elementary blocks of the combination circuit, which uses the basic logic gates. As we know that the fundamental gates are AND or not, XOR, NOR, NAND. As the sequencer circuit, what are the basic building blocks of the sequencer circuit? How the sequencer circuit are made with? Sequencer circuit is combination of combination circuit and other memory element. It includes various logic gates as in combination circuit, as well as it require memory element. And earlier we showed that the memory element are made with the latches and flip-flop. Latches and flip-flop are the passive circuit component
which can store the bit value as an information. लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो बिट वैल्यू के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और ये मेमोरी एलिमेंट की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट जो कि लॉजिक गेट तो है ही, इसके साथ साथ सीक्वेंसर सर्किट में फ्लिप फ्लॉप लैचेस का ग्रुप होता है जो कि मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन, हाउ द वर्किंग स्टाइल in the combinational circuit. In the combinational circuit, mainly used for arithmetic as well as Boolean expression. As far as operation is concerned, a functioning of combinational circuit is concerned, that the combinational circuit only depend on the arithmetic operations like add, subtract, division, and logical operation, not and basic operations which are done by the logic gates are maintained by the combinational circuit, because the building, as you know, that the building blocks are simple logic gates. We use simple operations with the help of combinational circuit. Here the sequential circuit mainly used for storing data. Suppose you are having the operation like store the previous value. As I explained the example of a counter, in the counter the next output is dependent on the previous input. As the previous input is 5 and we want to add the 2, then we add 5 plus 2 is 7. Then 7 is also needed to store in the memory element, because for the next operation we include this one. The sequential circuit required the storing data. So when our task is for storing data for these reasons, then we make the sequential circuit. And you know, as you know, that the memory element, RAM, and these things are made by the sequential circuit because they need it for the storing the data. So these are the differences between these things. Feedback link, as feedback link shows that it depends on the inputs and previous inputs. ये एग्जांपल जो जैसे मैंने बताया कि जैसे कि आपका ये एरो देख रहा है कि आपका इनपुट तो करंटली आ रहा है, साथ में जो आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट जो आ रहा है उस आउटपुट की वैल्यूज को भी आप स्टोर कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम जब ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इनपुट के साथ साथ इस करंट स्टेट के आउटपुट को भी यूज करेंगे। तो इसी चीज को फीडबैक बोलते हैं, क्योंकि ये आउटपुट को रिवर्स प्रोसेस के अंदर इनपुट में यूज कर रहे हैं। अगेन आउटपुट इज यूज एज ए इनपुट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेट इनपुट, इंटरनल इनपुट की तरह से ये यूज कर लिया जा रहा है। ये सिंपल कॉम्बिनेशन उसमें नहीं होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट में नहीं रहता है, वहां पे केवल एक ही रहता है। और इसी की वजह से हमें एक मेमोरी एलिमेंट लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये स्टोर करेगा इसको, कि जो वैल्यूज आएंगी उसको स्टोर करेगा, और स्टोर कर करके जब जरूरत होगी तो उसको वहां पे देता जाएगा। ओके, तो ये मेन फीचर है फीडबैक का, जो कि इसमें आपने इंक्लूड किया है। सीक्वेंशियल सर्किट में यही अंतर है। तो hopefully here we are compare the combination sequential circuit. Now I explain the what are the different types of sequential circuit. Sequential circuit के अलग अलग टाइप कौन से हैं? तो अब ये सी डायग्राम में कंफ्यूज मत होइए, या सीक्वेंशियल सर्किट लिखा हुआ है, मतलब सीक्वेंशियल सर्किट अगर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? इट इज इंक्लूड कॉम्बिनेशन सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट। मतलब इसके अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट भी है और मेमोरी एलिमेंट दोनों है। तो एक साथ ब्लॉक किस तरह बना सकते हैं सीक्वेंशियल सर्किट का, और उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो इस तरह से बनता है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। दो तरीके के सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट एंड सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, टू टाइप्स ऑफ circuits are available as sequential circuit. तो एक एक करके देखते हैं। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? These circuits do not use a clock signal but uses the pulses of inputs. These circuits are faster than synchronous circuit.
because there is a clock pulses and change their state immediately. When there is change in input signal, we use asynchronous signal circuit. When speed of operation is important, the independent of internal clock pulses. मीनिंग क्या है? ऐसा सिक्वेंशियल सर्किट जिसके अंदर डू नॉट यूज क्लॉक सिग्नल, मतलब किसी भी तरीके का एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज नहीं होता. एसिंक्रोनस का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग होता है जहां पे सिंक्रोनाइजेशन ना हो, जहां पे टाइमिंग. सिंक्रोनाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड हर जगह आप यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, असिंक्रोनस. सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जैसे कि सपोज करिए कोई भी कंटेंट आप भेज रहे हैं, जैसे मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ तो वो इसी समय आपके पास पहुंच रही है. तो अगर टाइम का डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट टाइम पे आपकी कोई चीज इनपुट से आउटपुट में पहुंचती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस. इस चीज को मेंटेन किया जाता है. रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ डिले होता है, लेकिन उस डिले को कम किया जाता है. जैसे मेरी इंफॉर्मेशन भी आपको कुछ समय बाद पहुंच रही है, इंटरनेट की कुछ स्पीड की वजह से या कुछ की वजह से थोड़ी देर में पहुंच रही है, चाहे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही टाइम लगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देर में पहुंच, आपकी बात मेरे तक देर में पहुंच रही है. तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. सिंक्रोनाइजेशन जहां पे होता है जब करंट, जैसे कि क्लासरूम देखिए, तो क्लासरूम में टीचर जब बोलता है तो जैसे ही वो कुछ बोलता है तुरंत आप तक पहुंचता है डायरेक्टली. तो इसको सिंक्रोनस बोलते हैं. असिंक्रोनस का मतलब ये है कि जब आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो डेटा जब रिसीव किया जा रहा है तो उस पर टाइम डिले रहे, और अगर आपको टाइम डिले चल जाए, जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर सेकंड में मिनट में डिले हो भी जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू उतना मैनेज हो जाता है. मैनुअल में प्रोसेस है, मैनुअल में ऐसा पॉसिबल है कि आप सिंक्रोनस वे में दीजिए और चल जाए दिक्कत. लेकिन जब कहीं पे क्रिटिकल कंडीशन आती है जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे ही डेटा अपडेट करना होता है, तो वहाँ पे सिंक्रोनस सर्किट की जरूरत पड़ती है. तो मैंने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का बेसिक डिफरेंस बताया. कहीं पे भी आपका सिंक्रोनस सिंक्रोनस वर्ड लिखा हो तो इसका मीनिंग यही है, सिंक्रोनस के अंदर विद इन दैट टाइम इंस्टेंट इनपुट कन्वर्टेड टू द आउटपुट, डायरेक्टली वो रिसीव होता है. एंड एसिंक्रोनस के अंदर क्या है कि टाइम डिले होता है. तो इससे इसी वर्ड से रिलेटेड आपको लिखा हुआ है कि द सर्किट डू नॉट यूज ए क्लॉक सिग्नल बट यूजेस द पल्सेस ऑफ इनपुट्स. मतलब यहाँ पे एसिंक्रोनस सर्किट के अंदर जहां पे यूज होते हैं जहां पे आपको फास्टर एग्जीक्यूशन, फास्टर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, टाइम डिले चलेगा. तो अगर ऐसा कहीं पे है कि इंफॉर्मेशन मिल जाए लेकिन थोड़ा बहुत टाइम डिले, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो उस जगह पे हम लोग एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट लगाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. और इसमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल नहीं चाहिए, क्लॉक नहीं लगा होता है. क्लॉक के मतलब कि प्रोसेसर इसको गवर्न नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है, इसको डायरेक्टली प्रोसेसर कंट्रोल नहीं करता है बैलेंस बनाने के लिए. क्लॉक सिग्नल के बजाय यहाँ पे पल्सेस यूज होती हैं. पल्सेस का मतलब ये होता है कि इनपुट आपके 1 बाय 1 ट्रांसफर किए जाते हैं, एक एक करके टाइमली. जो भी अब फीडबैक इनपुट आ रहे हैं वो इनपुट धीरे धीरे करके ट्रांसफर किए जाते हैं, और वो 1 बाय 1 इनपुट मतलब कि अगेन इनपुट में फीडबैक इनपुट में यूज कर लिए जाते हैं. और आगे लिखा भी हुआ है कि दिस सर्किट आर फास्टर देन. इसका फायदा ये है क्योंकि यहाँ पे जिस रेट में आपका इनपुट फीडबैक का इनपुट आ रहा है उसी रेट में धीरे धीरे करके यूज होता जा रहा है. तो अगर कम डेटा रहेगा तो इजीली हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है. तो अगर आप एक स्मॉलर रेंज पे देखें, कंपेयर करें, तो ये फास्टर होता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं है. भाई जब अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन रहेगा मैनेज करने के लिए तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोसेसर कुछ समय लेगा, प्रोसेसर का कुछ वेटिंग टाइम होगा. प्रोसेसर फ्री तो रहता नहीं है, जब वो और भी काम करते रहता है, जब वो फ्री होगा तभी तो आपका मैनेज कर पाएगा. तो वहां पे वो टाइमिंग उसकी बढ़ जाती है. तो अगर आप स्मॉलर एग्जिस्टेंस पे देखें और अगर आपको क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, क्रिटिकल टाइमिंग आप फैक्टर नहीं है आपके पास है, तो आप एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट लगा सकते हैं. वो आपका धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करता रहेगा, किसी भी तरह का उसमें एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल नहीं चाहिए, वो केवल पल्सेस के थ्रू इसको रन करता रहेगा. पल्सेस धीरे धीरे करके वो मूव करती रहेंगे. Asynchronous sequential circuit when speed of operation is important and
इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल क्लॉक्स। अगर आपको इस तरह से कुछ करना है कि एक्सटर्नल क्लॉक्स क्लॉक्स नहीं चाहिए, और जैसे जैसे वो जहाँ पे आप ये कह सकते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना है, मतलब कि वो धीरे धीरे करके अपने आप ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आउटपुट आता जा रहा है, वो आप प्रीवियसली यूज होता जा रहा है, मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ है, पल्सेस में ऐसा ही कुछ होता है। तो उस इस तरह के ऑपरेशन में आपका एसिंक्रोनस सर्किट यूज होता है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल क्लॉक। इंटरनल क्लॉक से ये इंडिपेंडेंट रहता है, जो आपके मैनेज करने के लिए, टाइम की मैनेजमेंट के लिए यूज किया था, उससे वो इंडिपेंडेंट रहता है। अब इसको और क्लियर हो जाएगा जब हम इसको अभी कंपेयर भी करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बट दीज सर्किट्स आर मोर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड देयर आउटपुट इज अनसर्टेन। मतलब कि ये एक तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम बन रहा है, अपने आप आउटपुट आए और अपने आप पल्सेस के थ्रू इनपुट में ले जाए, ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाए। तो ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है आपका, अगर इस तरह से काम कर रहा है, इसमें टाइमिंग पे मैटर नहीं है, मतलब कि सब कुछ अपने वे में चल रहा है, तो इसको प्रॉब्लम ये आती है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन, इसको डिजाइन करना आसान नहीं है, और आउटपुट इज अनसर्टेन, आउटपुट कोई अनसर्टेन है, जैसे जैसे इनपुट आएगा पता लगा कुछ ही इनपुट आया उसी पे आउटपुट आ गया। तो ऑटोमेटिक चलने की वजह से ये अनसर्टेन रहता है और डिफिकल्ट टू डिजाइन है एसिंक्रोनस सर्किट। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट निकालते हैं। इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं, और फिर अभी मैं नेक्स्ट टाइप अभी आप ज्वाइन करेंगे तो मैं इसका कंपेयर बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट क्या है, इसको कंपेयर करिए। यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ये देखिए डायग्राम में कोई चेंज नहीं, ये सीक्वेंसर सर्किट है। अगेन सीक्वेंसर सर्किट कंटेन कॉम्बिनेशन सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे एक देखिए एक्स्ट्रा एरो जुड़ी हुई, ये एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है जो कि सिस्टम से कंट्रोल कर रही है एक तरह से पूरे सर्किट को। तो सिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट में क्या होता है कि दिस सर्किट यूजेस ए क्लॉक सिग्नल and label inputs or pulses with restrictions on a pulse width and circuit propagation. The output pulse is the same duration as the clock pulse for the clocked sequencer circuit, since they wait for the next clock pulses to arrive to perform the next operation. So these circuits are a bit slower compared to a synchronous. Level output of changes state at the start of the input pulse and remain that until next input of clock pulses. मीनिंग क्या है इतना सारा लिखने के बाद? मीनिंग ये है कि यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये है कि जो आउटपुट निकलेगा, सपोज करिए 101 आउटपुट निकला है एग्जांपल के लिए, यहाँ पे आपने कुछ दिया है 11 कुछ भी दिया है, बिट्स बाइनरी फॉर्मेट में आउटपुट दिया है, इनपुट दिया है, अब वो इनपुट कुछ आउटपुट निकाल रहा है 101, तो ये 101 निकालने में कुछ समय लगेगा, और ये जो आउटपुट निकलने में समय लग रहा है, उस आउटपुट निकलने के बाद ये आउटपुट यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, और उतनी समय तक कोई अदर इनपुट यहाँ पे कंप्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस टाइम ले रहा है। और ये कौन बता रहा है, क्लॉक पल्सेस बता रही हैं कि दिस इनपुट आज आउटपुट इज वेटिंग, एंड जैसे ही ये आउटपुट निकलेगा तो ये आउटपुट इस पे स्टोर कर लिया जाएगा मेमोरी एलिमेंट में, और मेमोरी एलिमेंट में स्टोर करने के बाद ये क्लॉक पल्स डिसाइड करेगी कि अब इसका इनपुट यहाँ पे यूज होना है। तो यहाँ पे एक्सटर्नली गवर्न किया जा रहा है, एक्सटर्नली कंट्रोल किया जा रहा है कि आउटपुट कब इनपुट पे जाएगा, और यहाँ पे डिले रहता है कि जब तक कि अगला नहीं जाएगा इनपुट, जब तक ये कंप्लीटली यहाँ पे पहुंच ना जाए। तो एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाने की वजह से, और एक्सटर्नली कैसे कंट्रोल करते हैं, क्लॉक पल्सेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट लगी होती है जो कि कंट्रोल करती है कि कितना डिले करना है, कितना समय लेना है। मान लिया 2 सेकंड लग रहे हैं, तो 2 सेकंड तक वेट करेगा ये वाला, नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो फिर अगेन वेट करेगा, तो जब तक ये टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा वर्क, तब तक ये वेट करता रहेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नली ऑन किया जा रहा है, इसीलिए जो एक्स्ट्रा टाइमिंग बढ़ जा रही है, यहाँ पे जो क्लॉक पल्सेस एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा रहा है, इसीलिए ये स्लो हो जाता है इसके कंपेयर में। लेकिन स्लो तो है, लेकिन ये कंट्रोल वे में वर्क कर रहा है, आप इसमें सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं, ट्रैफिक को मेंटेन कर रहे हैं, और हर चीज वेल मैनेज वे में हो रही है। ओके, यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है, डिफिकल्ट टू डिजाइन नहीं है, इसको आसानी से डिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर का यूज हो रहा है,